Myself Bhamar Singh. My YouTube channel is History Polity Point. Today I am going to explain the chapter The French Revolution. As you know, there were three events in the world that changed the course of the history of the whole of the world. Number one, the French Revolution. Second, the Russian Revolution. And number third is Nazism, the rise of Hitler. So in this chapter we will study about the French Revolution. आखिर फ्रांसीसी क्रांति कब हुई और क्यों हुई और कैसे हुई। साथियों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। As you know, on 14th July 1789 in Paris, there were more than 7,000 people gathered on roads. 14 जुलाई 1789 को 7,000 लोग सड़कों पर थे पेरिस में. And that time there was a rumor that king had called the troops, so the people decided to fight. They were without arms, so they ran away toward the fortress prison Bastille. हथियार लूटने के लिए भाग पड़े Bastille. They looted arms, killed the jail officers, and destroyed the whole of the prison. Whole of the prison that was destroyed. पूरी prison को destroy कर दिया because it was the symbol of despotic power of the king. क्योंकि राजा के जो निरंकुश पावर थे उनका एक सिंबल था. तो वाई डिड इट हैपन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, क्यों हुआ था, क्यों इतने लोग सड़क पर थे, क्यों उन्होंने जेल को तोड़ डाला? तो फर्स्ट वी हैव टू कम डिस्कस अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी इन 18th century. As you know, in 1774, Louis XVI, he was the king of Bourbon dynasty. He became the king at the age of 20 years, and his queen was Austrian Princess Marie Antoinette. Both were very extravagant. दोनों बहुत साखर्स थे. Louis XVI helped America in War of Independence. फ्रांस और ब्रिटेन में दुश्मनी चलती थी. वो कहते नहीं है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. तो ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए फ्रांस हेल्प्ड अमेरिका इन द वार. रिजल्टेड द ट्रेजर वाज एम्प्टी, और व्हेन द ट्रेजर वाज एम्प्टी द किंग डिसाइडेड टू इंक्रीज द टैक्सेस. बट किंग हैड नो पावर टू इंक्रीज द टैक्सेस. द पावर वाज गिवन to the National Assembly of the time that was known as the General State. तो उस that time the society was divided to three states, three groups. First state, the second state, and the third state. The first state was a clergy. Clergy जो worship करते हैं, पादरी, priests, fathers. Second was nobles, nobility. The landlords, king, princes, they were belonging that. Our third state group was a working class. They belonging to 90%. 90% people were belonging to the third state, working class, and 10% there were to the first and second states. There were two type of taxes. One was collected by church and second was collected by state or government. The church collected the tax that is known as tithes, or state collected the tax that was known as tithe. So when king decided to increase the taxes, that time people refused. Growing a middle class, why was the reason why they refused? In 18th century, the population was increasing, there was unemployment,
wages were very low, there was shortage of food, prices of bread was increasing, or there were rise of the middle class. तो people were suffering of the crisis. इन मिडिल क्लास मध्यम वर्ग क्या होता था? वैसे दो ही वर्ग होते थे, एक तो होता था रूलिंग जिस पर रूल किया जाता था, दूसरा होता था वर्किंग। अब तीसरा ग्रुप आ गया, और इन मिडिल क्लास बिलोंगिंग द ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, that these were educated people. They became very rich that time because of the trade and industries. That time there were some philosophers also. John Locke, a British था, he wrote the famous book Two Treatises of Government. उसका ये मानना था कि गवर्नमेंट में और लोगों में टू ट्रीटिजेस हुई हैं, जिसमें ये हुआ था कि अपने पावर्स पब्लिक ने किंग को दे दिया, और किंग ने कहा ठीक हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए उसको पावर मिल गए। रूसो एक फ्रेंच फिलोसफर हुआ है, उसने फेमस बुक लिखी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि पब्लिक में और किंग में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तब पावर दिए गए थे। जो डिवाइन पावर ऑफ द किंग पर बिलीव करता था लुई 16 कि किंग को पावर भगवान से मिले, गॉड से मिले हैं, ऐसा नहीं था इनका मानना था। मॉन्टेस्क्यू एक जज था, उसने लिखा द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसने भी यही बात कही है कि जितने भी पावर्स हैं एक हाथ में नहीं होने चाहिए, दैट वर डिवाइडेड। दे गिव द स्लोगन लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड सफरेज। तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, these slogans became very popular during the French Revolution. अब ये रिवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ? आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन ये स्टार्ट कैसे हुआ? 5 मई लुइस कॉल्ड मीटिंग ऑफ द जनरल स्टेट। 5 मई को 1789 लुइस ने मीटिंग बुलाई जनरल स्टेट की। इन जनरल स्टेट, इन थर्ड स्टेट देर वर 600 मेंबर, टोटल जनरल स्टेट में 1200 मेंबर्स थे, 1200 मेंबर्स वर देयर। 300 of first state clergy, 300 of second state nobility and 600 members of the third state, टोटल 1200 थे। तो आधे उसमें से जो थे वो थर्ड स्टेट के थे। दे ब्रॉट 40,000 लेटर ऑफ ग्रीवेंसेस, वो 40,000 लेटर लिख करके आए थे कि लोग कितना परेशान है, टैक्स न बढ़ाया जाए। जब उन्होंने डिमांड रखी, किंग ने उन लोगों को बाहर कर दिया। दे कलेक्टेड ऑन 20 जून इन अ टेनिस कोर्ट एंड कॉल्ड हिमसेल्फ द नेशनल असेंबली, द थर्ड स्टेट। इसके लीडर्स थे, दे वर नोन एज जैकोबिन्स, मिडिल क्लास, इनको लिबरल नेशनलिस्ट भी कहते हैं। इनमें मिराबो, अबेसियस, रॉबेस्पियर एक नाम सुना होगा आपने। These were the prominent leader of the third state, or Abesius wrote a pamphlet, the third state also. France becomes constitutional monarchy. Constitutional monarchy समझते हैं कि when the powers taken from the king and given to the constitution, that is known as constitutional monarchy. The king rules according to the constitution. So the powers are in hands of the National Assembly. In 1791, Constitution was prepared, draft, and the kings was given very limited powers. More powers given to the National Assembly. अब किंग क्या था? नाम मात्र का राजा रह गया था, उसके पावर्स को जो है नेशनल असेंबली ने ले लिया। सिटीजन्स को राइट वोट दिया गया, लेकिन देयर वर 2 टाइप ऑफ सिटीजन्स, एक्टिव सिटीजन्स एंड द पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग होते थे जो 25 ईयर्स कंप्लीट कर लेते थे, जो टैक्स देते थे, वो एक्टिव सिटीजन्स होते थे। पैसिव सिटीजन्स में कौन आते थे? जो पुअर होते थे, जिनकी 25 ईयर्स एज नहीं होती थी, या वीमेन, औरतें, इनको भी पैसिव सिटीजन्स रखा गया। और असेंबली ने एक डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पास किया, एक डिक्लेरेशन पास किया, और उसमें कौन कौन से राइट दिए गए? राइट टू लाइफ,
फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये इतने राइट्स दिए गए। फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से ये रिपब्लिक बन जाता है। लुइस मेड कॉन्स्पिरेसी। जब लुइस के पावर ले लिए गए तो उसने कॉन्स्पिरेसी की, उसने ऑस्ट्रिया और प्रशा से मदद मांगी, वहाँ की आर्मीज आ गई, और जब आर्मीज आ गई तो पीपल, यहाँ की नेशनल असेंबली ने वार डिक्लेयर कर दिया। पीपल जो थे वो अपने देश के लिए आ गए, और वॉलंटियर्स दे सैंग अ सॉन्ग मार्शलाइज। रोजर डेल आइसस का है ये। दैट टाइम द किंग was captured, these armies defeated, and king and his queen both were hanged. King was hanged on 21st January 1799. A few days later, Queen Marie Antoinette was also hanged. After the Louis XVI, from 1793 to 1794, this period is known as the reign of terror, आतंक का राज्य। Robespierre became the president, but he started to torture his enemies. जो भी उसके दुश्मन थे, जो उसकी आइडियाज़ को लाइक नहीं करते थे, उनको अरेस्ट किया जाता था और गुलोटिन कर दिया जाता था। गुलोटिन क्या थी? गुलोटिन वाज अ मशीन जिसमें दो पोल होते थे, ऊपर एक कारा लगा होता था, ब्लेड लगी होती थी, नीचे एक तख्ता होता था, और लिटा करके सर अलग कर दिया जाता था। डॉक्टर गुलोटिन ने इसको बनाया था, उन्हीं के नाम पर इस मशीन का नाम रख दिया गया गुलोटिन। कहते विद इन 1 ईयर मोर देन 1500 पीपल वर गुलोटिन्ड। जो भी उसके खिलाफ होता था गुलोटिन हो गया। रिजल्ट क्या हुआ? उसके अपने साथी उसके अगेंस्ट हो गए, रॉबेस्पियर के। और जुलाई 1794 रॉबेस्पियर वाज आल्सो गुलोटिन्ड। उसको भी गुलोटिन कर दिया गया, उसको गुलोटिन कर दिया गया। अब लोगों ने कहा अरे इससे अच्छा तो लुइस 16 था, कम से कम वो जिंदा तो रखता था, तो गुलोटिन करने लगा। सो दे डिसाइडेड द डायरेक्ट रूल, कि अब एक लोग रूल नहीं करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, वो रूल करेगा। नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था 1793 में। 5 डायरेक्टर्स का रूल लाया गया, और उसमें एक मिलिट्री डायरेक्टर था, नेपोलियन बोनापार्ट। ही वॉज वेरी पावरफुल। अब क्या हुआ? हाउ डिड वीमेन हैव रिवोल्यूशन? क्या औरतों ने भी रिवोल्यूशन किया? यस, द वीमेन रिमेन्ड पैसिव सिटीजन्स। जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, आगे सबसे आगे औरतें रही थी, उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। लेकिन जब पावर देने की बात आई तो उनको पैसिव सिटीजन बना दिया गया। उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ चीट किया गया है। तो दे फार्म द जैकोबिन क्लब्स, दे डिमांडेड द पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स, राइट टू वोट, एंड दे स्ट्रगल्ड ए लॉट फॉर दैट। दे फार्म द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। स्ट्रगल करती रहीं, और द वीमेन एंड द मेन हु सपोर्टेड देम, they were known as the feminist, or the movement that was started by the women, these were known as the feminist movements. At last women got right to vote in 1946. पहले एजुकेशन का राइट दिया गया, प्रॉपर्टी का राइट दिया गया, और लास्ट में उनको राइट टू वोट दिया गया। तो दे स्ट्रगल्ड मोर देन 150 ईयर्स। महिलाओं को वोट पाने के लिए, अपने पावर पाने के लिए 150 ईयर्स से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेव ट्रेड। अब क्या हुआ कि स्लेवरी सिस्टम वाज प्रेजेंट इन होल ऑफ द वर्ल्ड, बट द स्लेवरी सिस्टम बिकेम व्हेन द यूरोपियन रीच्ड अफ्रीका। दे कैप्चर्ड द ब्लैक्स फ्रॉम अफ्रीका and they carried them to Europe and America to work on the plantations in 17th century. वहाँ के जो रबर प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन लगाए गए थे, वहाँ वर्क कराने के लिए इन वर्कर्स को लिया जाता था। इनको निग्रोज कहते थे। वहाँ के जो चीफ्स होते थे इनको पकड़ लेते थे और बेच देते थे यूरोपियन ट्रेडर्स को। बोरोडॉक्स एंड नेंटीज, ये दोनों वेरी रिच सेंटर बन गए स्लेवरी के कारण। लेकिन इसके बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में इस पर लॉन्ग डिस्कशन हुआ इन नेशनल असेंबली,
एंड एट लास्ट इट वाज डिसाइडेड कि दैट इन 1794 स्लेवरी इन फ्रांस वाज बैंड। फ्रांस में स्लेवरी को बैन कर दिया गया। इन 1848 स्लेवरी वाज अबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज, और बाद में फ्रेंच कॉलोनीज में भी स्लेवरी को बंद कर दिया गया। कंक्लूजन, आपको मालूम है आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 सेंसरशिप वाज अबोलिश्ड, कि जो प्रेस पर सेंसरशिप लगी हुई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, वो बहाल कर दिया गया, सेंसरशिप हटा दी गई। आप सबके लिए कॉमन यूनिफॉर्म, वैसे क्या होता था क्लर्जी अलग पहनते थे, नोबेल्टी अलग पहनते थे, आप सभी के लिए कॉमन यूनिफॉर्म हो गई। इन 1804 नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ। 1804 में नेपोलियन राजा बन गया। पहले वो मिलिट्री जनरल था, डायरेक्टर था, अब उसने अपने को किंग डिक्लेयर कर दिया। ही डिफीटेड मेनी यूरोपियन कंट्रीज, बहुत से यूरोपियन कंट्रीज, जिस कंट्री के पास जाता था अटैक करता था उसको जीत लेता था, कोई एक कंट्रीज को डिफीट नहीं कर सकता था। और रिजल्ट क्या हुआ, इन 1815 देयर वाज बैटल ऑफ वाटरलू। 4 कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, प्रशिया एंड रशिया, इनने मिल करके उसको डिफीट किया था। एक कोई उसको डिफीट नहीं कर सकता था, और इसका लीडर था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तभी ट्रीटी ऑफ वियना होती है। मेनी मॉडर्न रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत से रिफॉर्म्स किए थे, जिसको कहा जाता है नेपोलियन कोड और सिविल कोड। बहुत से मॉडर्न रिफॉर्म्स किए उसने, और इसीलिए उसको कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन बोनापार्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्नाइजर इन यूरोप कहा जाता है। तो ही वॉज अ ग्रेट जनरल, और कह सकते वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ द वर्ल्ड, और द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ फ्रांस। और ये आइडियाज जो थी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सफ्रेज, इनको टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, इन लोगों ने भी इन आइडियाज़ को सपोर्ट किया था, लाइक किया था। तो दिस वाज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। और अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।